Okay, so we are going to start just in a minute. So can somebody confirm if you are able to see the screen, shared screen? Okay, okay, that's great. So I'm going to start now. One more confirmation. You are able to see the screen? Yes, sir. Okay, great, great. Thank you. All right. So what we have done so far in this chapter, we talked about random variables. We talked about their probability mass function, PMF, the values a random variable can take, and the associated probabilities. We talked about the cumulative distribution function. Both CDF, PMF, they tell you everything about the random variable. There is nothing more about a random variable that PMF or the CDF, they don't tell you. And by the way, this PMF, CDF, they can be derived from each other. CDF पता हो तो PMF आ जाएगा, and PMF पता हो तो CDF आ जाएगा. Okay. And then we also talked about the expected or mean value. Okay. And the mean value was defined as expected value of a random variable is summation of all the possible values that the random variable can take multiplied with the respective probabilities. Okay. So summation is over all x such that the probability mass function for that x is greater than equal to 0, greater than 0. Okay. And then we defined the variance of a random variable. Variance of x is the expected value of x minus expected value of x whole squared. यानी आपका जो random variable है, what is the difference between your random variable and its mean values? See, this guy x is taking values all over the place. This guy expected value of x is fixed. So this is basically saying कि what is the tendency that x moves far away from the expected value of x. उसका हमने स्क्वायर लिया. स्क्वायर इसलिए लिया ताकि सिर्फ आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज. अगर नेगेटिव में भी आता है, हो सकता है आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इंस्टेंस ऐसा आया कि योर रैंडम वेरिएबल x टर्न्स आउट टू बी स्मॉलर देन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू. हो सकता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समवेयर बिटवीन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ठीक है. सो x अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से स्मॉलर होगा तो वो नेगेटिव में नंबर आएगा. उसको स्क्वायर करके हम वो भी खत्म कर देते हैं, बिकॉज वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द रैंडम वेरिएबल टू have instances away from the expected value. क्या चांस है, क्या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है, जब आप एक दफा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के नजदीक नजदीक होगा या दूर दूर होगा. ठीक है. सो दैट इज मेजर्ड by the variance. Okay. Then we talked about some examples of random variables, some famous random variables. Okay. Famous or useful random variables. Okay. The first one was a Bernoulli random variable. What is a Bernoulli random variable? Bernoulli random variable takes a value 1 or a value 0.
takes a value 1 or the value 0. Okay, and Bernoulli random variable is defined on an experimental sample space which has two outcomes. Bernoulli random variable is defined when there are two outcomes. Okay, किसी एक आउटकम को सक्सेस कह दें, दूसरी को फेलियर, या आपकी मर्जी है जिसको भी सक्सेस कहें. ओके, सक्सेस एंड फेलियर, देयर आर टू आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इट कुड बी टॉस ऑफ अ कॉइन, हेड को कह दिया सक्सेस, टेल को कह दिया फेलियर, और वाइस वर्सा. दो डाइस को रोल किया, अगर सम ऑफ द फेसेस 7 आ गया तो उसको सक्सेस कह दिया, अगर कुछ और आ गया तो उसको फेलियर कह दिया. बस दो से ज्यादा आउटकम्स नहीं हो सकती. ठीक है, सो यू विल हैव टू, अगर बहुत ज्यादा आउटकम्स हैं उनको क्लब करके एक ही जगह पे डालना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ you define this random variable x if which takes the value 1 if outcome is success, or if the outcome is failure it takes the value 0. Okay? And the probability mass function just has 2 points, takes the value 1 with probability, some probability. Okay? So if outcome is success, let's say that success की probability, assume probability of success is small p, then the PMF is px0 is equal to 1 minus p, and px of 1 takes a value 1 with probability p. This is the PMF of a random variable x, जिसको हम कहते हैं कि this has a Bernoulli distribution with parameter p. सिर्फ parameter p जो है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर देता है. p पता चल जाए, you can tell the PMF, you can, once you know the PMF you can tell the CDF, you can answer all the probability questions, you can find the expectations. ये हमने last time find की थी. Expectation would be p times 1 and 0 times 1 minus p, which is p. Variance can also be determined. By the way, ये जो variance का formula था ये हमने एक और इसका alternate formula भी ढूंढ लिया था, and that alternate formula was expected value of x square minus expected value of x whole squared. ठीक है, so expected value of x हमारे पास p आ गई थी, expected value of x squared हमारे पास वो भी p आ गई थी, and variance of x was expected value of x squared which is p minus expected value of x whole squared which is p whole squared. So this was p into 1 minus p. This was the variance of the Bernoulli random variable. फिर 2-3 हमने examples किए इसके अंदर, and we were done. Okay. The next random variable that we talked about was the binomial random variable. Binomial random variable कैसे डिफाइन किया था? यहाँ पे you have n trials of an experiment, रिपीट करते हैं उसको, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, हर ट्रायल के अंदर आपके पास ये सक्सेस आ सकती है या फेलियर आ सकती है. ईच ट्रायल उसके अंदर ईदर सक्सेस और फेलियर. ठीक है, इसका मतलब है कि हर ट्रायल में मैं एक बर्नूली रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूं, एंड फॉर ईच ट्रायल we will have the same kind of Bernoulli random variable जिसकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी. इसका ये मतलब नहीं कि वो Bernoulli random variable जो उसकी वैल्यूज भी सेम होंगी. ठीक है, हो सकता है कि आप कॉइन टॉस करते हैं और हेड को कहते हैं सक्सेस है. ठीक है, तो पहले आपके पास टॉस किया तो टेल आ गया, फिर किया फिर टेल आ गया, फिर किया हेड आ गया, फिर किया हेड आ गया, फिर किया हेड आ गया. सो टेल जो है ये आपके पास फेलियर आई, तो आपके पास जो बर्नूली कॉरस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल है वो 0 होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद हो सकता है फिर 0 हो जाए, और हो सकता है फिर दोबारा 1 हो जाए. सो ये रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीटेड ट्रायल्स. इन ईच ट्रायल you have a success or a failure. पहली दफा किया तो फेल आ गया, दूसरी दफा किया, इत्तेफाक की बात है, फिर फेल आ गया, तीसरी दफा किया तो सक्सेस आ गई. सो हमें पता नहीं है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या आएगी, इसीलिए तो प्रोबेबिलिस्टिक है ये, ठीक है. सो नाउ
you perform n of these trials, n trials इसके करते हैं, n of these trials, and count the number of successes. Okay. Let us call it x. X is a random variable and x is a binomial random variable. इसको हमने डिफाइन ऐसे किया था कि x is a binomial random variable with parameters n आपने ट्रायल्स किए हैं और probability of success in each trial is p. ठीक है, इसका मतलब है हर ट्रायल के अंदर जो एक आपके पास बर्नौली रैंडम वेरिएबल आ रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, उसकी वैल्यू जो है वो कभी 0 होती है, कभी 0 होती है, कभी 1 होती है, बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने का मतलब है कि इन ईच ट्रायल जो आपके पास रैंडम वेरिएबल जनरेट हो रहा है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कंप्यूटर पे जब आप एक रैंडम वेरिएबल जनरेट करते हैं, रैंडम नंबर जो जनरेट करते हैं, तो आपके पास तो एक ही वैल्यू आती है, लेकिन वो आपको पता नहीं कौन सी वैल्यू आती है, वो कोई भी आ सकती थी, वो कोई भी वैल्यू आ सकती थी। लेट्स से 0 और 1 के बीच में कोई रैंडम वेरिएबल जनरेट किया, यू नो सम पीपल माइट हैव डन दैट यू नो इन CS 100 और यू नो वन ऑफ दोस कोर्सेज, तो कंप्यूटर में बड़ा इजीली जनरेट हो जाता है वो, लेकिन आपको एक ही वैल्यू मिलती है। सो इस बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो रैंडम वेरिएबल, there is a probability, there is a chance it can take these different values, but when you perform the experiment once it will take only exactly one value, उनमें से ही एक वैल्यू वो ले लेगा। ठीक है, so x is a binomial random variable. You can see that x can be written as x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 up to xn, where each of these xi's, x1 is a Bernoulli random variable with parameter p, x3 जो है वो भी एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है with parameter p, x2 भी ऐसा ही है, Bernoulli random variable with parameter p. Each of them is a Bernoulli random variable with parameter p. Okay. Now I am trying to find the PMF of x. मुझे x के बारे में कुछ probability questions आंसर करने हैं. I have to answer several questions about x. x के बारे में मुझे बहुत सारे सवाल हैं. ठीक है, तो वो सवालों के जवाब देने के लिए if I know the PMF of x, I can answer all the probability questions about x. So सबसे पहले तो इसका PMF फाइंड आउट करते हैं. What are the possible values x can take? x can take possible values. हो सकता है आपने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, आपको कोई सक्सेस ही ना मिले, 0 सक्सेसेस हो, सो हो सकता है x takes the value 0, which is the number of successes. Okay, so number of successes is the x. ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, so on and so forth, all the way up to n हो सकता है, सबकी सब successes हो जाए. Okay, so x takes these n plus 1 different values. What is the probability x takes the value 0? X takes the value 0 when there is 0 successes. n trials किए जिसमें से 0 successes आई, p power 0, 0 successes, 1 minus p, which is a failure probability, power n minus 0, which is really 1 minus p power n. Similarly, px1 would be equal to n choose 1 p power 1 minus p power n minus 1. So ये जो भी निकलती है हमें पता नहीं, ठीक है, and so on and so forth. ये हमने लास्ट टाइम बल्कि किया भी था, ठीक है. And then we found एक दो एग्जांपल्स भी हमने इसमें की थी कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली आपके पास 1/4 आ जाए. So you when you are given a statement, you just have to realize कि यहाँ पे कौन सा रैंडम वेरिएबल फिट हो रहा है. So the situation will tell you with some experience कि इस जगह पे कौन सा हमने रैंडम वेरिएबल फिट करना है, ठीक है. Now last time we talked about कि बाइनोमियल की एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस भी फाइंड आउट करते हैं. प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस तो हम आंसर कर ही देंगे, ठीक है. नाउ just
expected value and variance of binomial, of course, of binomial random variable, of binomial random variable. ठीक है, सो ये लास्ट टाइम हमने कहा था कि if x is a binomial, if x is a binomial with parameters n and p, यानी n ट्रायल्स किए, हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p थी, then we can show that expected value of x power k, where k is some constant, is equal to n times p expected value of y plus 1, y is also a random variable, power k minus 1. Once again, k is a constant. Okay? And y is a, where y is a random variable, also a binomial random variable, with parameters n minus 1 and p. Okay? ये प्रूफ कर देते हैं, अभी प्रूफ कर देते हैं. So इसका प्रूफ क्या? It's given in the book, by the way. So expected value of x power k is the expected value of a function of a random variable. कैसे मालूम करते हैं? इसको ऐसे मालूम करते हैं, summation upon all I power k p x I. I की जगह small x भी लिख सकते हैं, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता. I की जगह पे small x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? So this would be equal to summation upon I power k. What is px of I? Px of I is the probability of exactly I successes. ठीक है? Probability of exactly I successes n trials आपने किए, क्योंकि ये x की PMF है, so n trials, out of those I successes, so p power I and 1 minus p, the remaining n minus I are failures. Everyone is okay with that? Okay. So now इसको अब ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा ओपन अप करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? So n choose I, as we all know, is factorial n, factorial I, factorial n minus I. ठीक है? इसको हम ऐसे लिख देते हैं, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो n माइनस 1 से 1 तक सब कुछ खींच के ले गया. सिमिलरली i को भी हम i इंटू i माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और n माइनस i को मैं ऐसे लिख देता हूं, n माइनस 1 माइनस i माइनस 1, दोनों का डिफरेंस सेम ही है, ये उसका फैक्टोरियल आ जाता है. ठीक है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है, n को जो है वो फैक्टोरियल से बाहर खींच दिया. बिल्कुल उसी तरह जैसे 6 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल होता है. Okay, now so this can be written as n choose I would be equal to, मैं ऐसा करता हूं कि ये n और I को अलग कर लेता हूं, n डिवाइडेड बाय I, और बाकी क्या चीज बच गई है? बाकी जो बच गई है वो n माइनस 1 चूज I माइनस 1 बच गया. ठीक है? ये ऐसा क्यों किया हमने? इसलिए हमने ऐसा किया, हमें पता नहीं था कि ऐसा करना है. ये किसी ने बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करके, किसी मैथमेटिशियन ने कभी डिराइव किया होगा. हमें तो ये ट्रिक सीखनी थी, हमने ये ट्रिक जो है वो फौरन से सीख ली. ये अभी सीख लेंगे 2-3 मिनट में. ठीक है? सो नाउ आई कैन रिप्लेस n choose I with this guy here in this expression. So expected value of x power k will turn out to be summation over I is equal to, by the way, I की लिमिट्स क्या है? I की लिमिट्स हैं 0 to n. लेकिन देखें, अगर I को मैं 0 लिखूंगा यहाँ पे, तो I को 0 वाली तो टर्म वैसे ही खत्म हो जाती है, तो ये एक्चुअली 0 नहीं है, तो ये 0 के बजाय ये 1 से n तक होगी, क्योंकि I इज इक्वल टू 0 के लिए वो टर्म ही 0 हो जाती है. So I will be going from 1 to n, this I power k, ये मैं यही वाली एक्सप्रेशन दोबारा से लिखने लगा हूं, with that substitution, I power k, और n choose I को मैंने लिख दिया n over I, n minus 1 choose I minus 1.
Okay, and then p power I और 1 माइनस p पावर n माइनस i। okay, थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें से ये वाला जो n है, ये वाला n और ये इस p पावर i में से एक p हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये n और p समेशन से बाहर, बोथ आर कांस्टेंट्स, तो आई कैन पुल देम आउट, आई कैन पुल देम आउट। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा i इज इक्वल टू 1 to n i पावर, ये देखिए ये i पावर k है और ये i एक यहाँ पे है, तो ये i की पावर k माइनस 1 हो जाएगी, i की पावर k माइनस 1 हो जाएगी, और अंदर n माइनस 1 चूज i माइनस 1 आ रही है। ठीक है, और एक p हमने बाहर निकाल लिया था, एक p हमने बाहर निकाल लिया था, तो ये p की पावर i माइनस 1 आ गई। ठीक है, p की पावर i माइनस 1 आ गई, और 1 माइनस p की पावर n माइनस i आ गई। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी मैनिपुलेशन, जरा सी मैनिपुलेशन। Okay, now what I'm going to do is I'm going to replace I with j. Let j is equal to I minus 1. Let j is equal to I minus 1. So जहां I आ रहा था वहां पे मैं j plus 1 लिख दूंगा, जिस जगह I आ रहा था वहां पे j plus 1 लिख देंगे। So, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई जो है वो तो एक समेशन का वेरिएबल है। मैं कहता हूं आई को 1 से लेके 10 तक समेशन करनी है, तो इट डजंट मैटर। मैं कहूंगा कि जे की समेशन जो है वो 0 से लेके 9 तक करनी है। इट डजंट नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के आखिर में, इस एक्सप्रेशन के आखिर में आंसर में आई नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई इज ओनली अ वेरिएबल यूज्ड फॉर समेशन। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटीग्रल में आप इस्तेमाल करते हैं समेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, और बाद में उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, यू गेट द वैल्यूज। आपके पास कभी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो कभी नहीं आता ना। ओके, सो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पावर k would be equal to this np guy is the same. Summation will go from j is equal to j, when I is 1, then j is 0, when I is n, then j is n minus 1। और i की जगह पे मैं अब j plus 1 लिख देता हूं, j plus 1 पावर k minus 1 and n minus 1 choose j, p to the power j, 1 minus p, n minus 1 minus j, n minus 1 minus j। Okay, now what is this guy? What is this guy? This is equal to n times p, n times p। ये क्या चीज है? What is this guy? If you think about it, this is expected value of a function of a random variable, and that random variable happens to be, remember function of a random variable की expectation क्या होती थी? g of x साथ उसका probability mass function multiply होता था और summation आ जाती थी। That was the definition of the function, अगर function हमारा g of x हो। ठीक है, expected value of the g of x was equal to this guy here, was equal to this guy here। ऐसे हमने expected value of the function of a random variable मालूम की थी। Okay, now here you look at it कि this is a probability mass function। ये मैं इसको सर्कल करने लगा हूं, ये this guy is a probability mass function। This is a probability mass function of a binomial random variable along with this summation। This is the probability mass function of a binomial random variable j going from 0 to n minus 1। इसका मतलब ये है, अगर इसको कंपेयर करें, अगर इसको कंपेयर करें आप एक्चुअल बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के पीएमएफ से, सो जिसमें पी एक्स ऑफ आई क्या होता है आपके पास, एन चूज आई पी पावर आई 1 माइनस पी एन माइनस आई, ये होता था। यहां पे अगर आप देखें, सो दिस इज n माइनस 1 ट्रायल्स हैं जिसमें से आपके पास j सक्सेसेस हैं, p पावर j और n माइनस 1 माइनस j 1 माइनस p। इसका मतलब है
कि दिस इज द पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल with parameters n minus 1 and p, ठीक है। सो अगर तो सिर्फ इसकी समेशन हो रही होती, ये ग्रीन वाली टर्म आपके पास ना होती, दिस ग्रीन टर्म आपके पास ना होती, तो ये समेशन आपके पास क्या आंसर आता? अगर ग्रीन वाली टर्म आपके पास ना होती तो इस समेशन का क्या आंसर आता? समेशन ऑफ द पीएमएफ, द आंसर वुड हैव बीन, आंसर इन द चैट विंडो वुड बी 1, द आंसर वुड बी 1, ठीक है। लेकिन अब ये ग्रीन वाली भी चीज आ गई है। जिस तरह हमें पता है कि समेशन ऑफ पी एक्स एक्स ये हमेशा 1 होता है, लेकिन अगर समेशन ऑफ कोई साथ में उसके जी ऑफ एक्स पी एक्स एक्स आ जाए तो ये क्या चीज होती है? ये होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर आप देखें कि यहां पर आपके पास j प्लस 1 पावर k माइनस 1 आ रही है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज ये आपके पास if y is a random variable with binomial PMF with parameters n minus 1 and p, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप ये कह रहे हैं कि y प्लस 1 पावर k माइनस 1 आ रही है या j प्लस 1 पावर k माइनस 1 आ रही है, ठीक है। सो j और स्मॉल y उसमें से हम कोई भी यूज कर लें, इट डज नॉट इवन मैटर, j की जगह मैं स्मॉल y भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो नाउ दिस गाय इज, ये वाली जो चीज है, this turns out to be expected value of this function की expected value, ये function जो है आपके पास इसकी expected value, and this function is y plus 1 power k minus 1, y plus 1 power k minus 1, और यही तो हमने प्रूव करना था, expected value of x power k is equal to this guy. Now इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि ये आपके पास आई है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पावर के, ठीक है। सो इसको ऐसा करते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 के को 1 पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस वुड गिव यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच इज अ बाइनोमियल विद पैरामीटर्स n and p, okay? This would be equal to expected value of y plus 1 power, sorry this should be np, एक इसके साथ जरूर होना चाहिए, ये वाला np, इसको भूलना नहीं है, ये np आपके पास होना चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y plus 1 पावर k minus 1, और k को आपने 1 पुट किया तो y 0, ठीक है। So this really is equal to expected value of 1 is 1. Expected value of 1 is 1. So this would be n times p. Easy peasy. Number 2. K को हम 2 सेट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा expected value of x squared. Expected value of x squared would be n times p expected value of y plus 1 power 2 minus 1 which is 1. So ये आपके पास आ जाएगा. So this would be equal to n times p expected value of y plus 1. What is y? Y is binomial. Y is binomial with parameter n minus 1p. Okay. So what would be the expected value of y plus 1? Expected value of y क्या होगी? वो तो अभी हमने ऊपर निकाली है कि अगर कोई आपके पास बाइनोमियल हो विद पैरामीटर np, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? n मल्टीप्लाइड बाय p. अगर आपके पास कोई बाइनोमियल हो n minus 1p, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी n minus 1 टाइम्स p. और एक ये 1 जो ऐड हो रहा है, ये हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आपका कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू, ये मैं इसको लिख रहा हूं, y की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज n minus 1 टाइम्स p प्लस ये 1 उसी की तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व हमने किया था लास्ट टाइम,
और उसके बाद हमने कहा था कि वेरिएंस क्या होगी, वेरिएंस ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू, ये जरूरत क्यों पड़ी थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने की, ताकि हम ये कर सकें expected value of x square minus expected value of x whole square. So would be this guy minus this guy whole square, and this will turn out to be, ये हमने last time solve भी किया था, n times p 1 minus p, n times p 1 minus p. This is the variance of binomial random variable. देखिए n और p में ही define हो गई, n और p will tell you the कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन. एन और पी अगर मैं आपको बता दूं, आपको बाइनोमियल में उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पता है. यू कैन आंसर ऑल द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. यू कैन ड्रॉ द पीएमएफ, यू कैन ड्रॉ द सीडीएफ, यू कैन डू व्हाटएवर, यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यू कैन फाइंड द वेरिएंस. अगर सिर्फ एन और पी आपको बता दिया जाए, सिर्फ एन और पी बता दें, तो आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ कपल ऑफ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि बाइनोमियल कहां अराइज होता है. ठीक है. 10 फेयर कॉइन्स, कॉइन गलत हो गया, 10 फेयर कॉइन फ्लिप्स. एक कॉइन लें, फेयर कॉइन है, 10 फ्लिप्स उसके करने हैं, 10 फ्लिप्स ऑफ अ फेयर कॉइन, 10 फ्लिप्स ऑफ अ फेयर कॉइन. ठीक है. और फिर गैस करना है हर दफा, गैस ईच टाइम. हर बार आपने गैस करना है. यूं समझ लें कि ये पीएसएल के लिए टॉसेस हो रहे हैं, पीएसएल के लिए टॉसेस हो रहे हैं, जो टॉस जीत जाएगा वो मैच भी जीत जाएगा. अभी तक तो ऐसे ही होता आ रहा था कल तक. ओके. नाउ यू गैस ईच टाइम probability of exactly 7 correct guesses. 7 correct guesses. Now if you think about it, जरा देखें इसको, इंट्यूटिवली देखें. ये ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने 10 बार गैस करना है और उसमें से आपने 7 करेक्ट गेसेस लेकर आने हैं. तो थिंक अबाउट इट कि दिस इज लाइक डूइंग 10 ट्रायल्स और उसमें से मुझे 7 टाइम्स सक्सेस चाहिए. 10 ट्रायल्स हैं जिसमें से 7 टाइम्स सक्सेस चाहिए. दिस लुक्स लाइक ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि मुझे 10 में से 7 सक्सेसेस चाहिए. सो 10 में से 7 सक्सेसेस चाहिए, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 power 7, and 1 minus 1/2, which is also 1/2 power 10 minus 7. This is your answer. This is your answer. You can answer this question very quickly. बाइनोमियल को देख के ये शायद हम चैप्टर 2 के बाद भी आंसर कर सकते थे बाय द वे, लेकिन आप देखेंगे कि ये बाइनोमियल पढ़ने से हम क्विकली, वेरी क्विकली सवाल जो हैं वो आंसर करते जाएंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, इस तरह के बेशुमार सवाल हैं, वो वेरी क्विकली आंसर करेंगे. नाउ I'm going to do 2 examples which are very important to understand. 2 examples जिसमें से पहली एग्जांपल जो है उसके 2 पार्ट्स हैं. पहली एग्जांपल के 2 पार्ट्स हैं, very important to understand. तो जरा फोकस करेंगे. 10 items in a packet. यूं समझ लें एक मैच बॉक्स है, उसके अंदर 10 आइटम्स होती हैं, या आप बाजार से कोई कैंडीज का बॉक्स एक खरीद के लाते हैं जिसमें 10 कैंडीज होती हैं. ठीक है. सो यू हैव 10 आइटम्स इन अ पैकेट, 10 आइटम्स इन अ पैकेट. या यूं समझ लें कि एक पोर्ट के ऊपर 10 शिप आते हैं, एक पोर्ट के ऊपर 10 शिप आते हैं. ठीक है. उनमें से हर शिप के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है. ठीक है. सो ईच आइटम इज डिफेक्टिव. और शिप के ऊपर डिफेक्ट आप कुछ कह सकते हैं कि एक शिप के ऊपर अगर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमोडिटी आई है तो हम कह देंगे कि वो शिप जो है वो डिफेक्टिव है. सो ईच आइटम इज डिफेक्टिव विद प्रोबेबिलिटी 0.01. The packet is returned if more than one items are defective. एक से ज्यादा अगर एक डिफेक्ट हो गई तो हम रख लेंगे, एक से ज्यादा डिफेक्टिव हो गई तो हम उसको वापस कर देंगे. पहला पार्ट ये है, ये इजियर पार्ट है. दूसरा भी इजियर है, लेकिन सोल्ड 1 पैकेट, एक पैकेट आपने सोल्ड किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी रिटर्न. थिंक अबाउट इट कि एक पैकेट आपने सेल किया, उसके अंदर 10 आइटम्स थी. What is the probability this packet will be returned? इसका मतलब है कि आपने
वो 10 आइटम्स हैं, उन 10 में से आपने मेक श्योर करना है कि एक से ज्यादा आइटम खराब ना हो, अदरवाइज पैकेट विल बी रिटर्न. सो पैकेट विल बी रिटर्न इफ देयर आर मोर देन packet will be returned if greater than one defective. ठीक है. So probability of return would be equal to 1 minus probability 0 or 1 defective. 0 or 1 defective. अगर 0 या 1 डिफेक्टिव हो गए तो हम रख लेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट इट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर 0 डिफेक्टिव होंगी तो 1 नहीं हो सकती, अगर 1 डिफेक्टिव होंगी तो 0 नहीं हो सकती. ठीक है. सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 minus 10 choose 0, 0.01 power 0. Now, and 0.99 power 10 minus 10 choose 1, 0.01 power 1, 0.99 power 9. ठीक है. Now, ये नोटिस करें कि हमने डिफेक्टिव जो आइटम है उसको हमने कहा है सक्सेस है. तो जब आपको 0 सक्सेसेस मिले, यानी 0 डिफेक्टिव हो, तो भी पैकेट रिटर्न नहीं होगा. अगर 1 सक्सेस हो तो भी पैकेट रिटर्न नहीं होगा. 1 सक्सेस का मतलब है 1 आइटम डिफेक्टिव हो. अगर आपको 1 से ज्यादा सक्सेसेस मिल गई, 10 ट्रायल्स किए आपने, और आपको अगर 1 से ज्यादा सक्सेसेस मिल गई, तो आप पैकेट को रिटर्न कर देंगे. सो व्हाटएवर इज दिस आंसर, लेट मी कॉल इट P. इसको P कह देते हैं, या जो भी कह देते हैं. अभी चले रुक जाते हैं. दूसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो सोल्ड 3 पैकेट्स सेल किए हैं आपने. ठीक है. प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 विल बी रिटर्न्ड. 1 will be returned. So फिर दोबारा से हम सक्सेस डिफाइन करते हैं. सक्सेस इज डिफाइंड एज द पैकेट इज रिटर्न. ये इस वाले पार्ट के लिए ऐसे मैंने सक्सेस डिफाइन की है. तो इसका मतलब है मैंने 3 पैकेट सेल किए, 3 में से मुझे एक सक्सेस चाहिए. 3 choose 1, P power 1, 1 minus P, 3 minus 1. This is my probability. This is the probability that exactly 1 will be returned. Okay. What is P here? Answers in the chat window. What is P here? Part A. ये जो पार्ट ए में आपने कैलकुलेट की थी, that was P. That was the probability that the packet will be returned. That was the probability packet will be returned. So you see कि ये बाइनोमियल में हमने एक सिंगल पैकेट के अंदर भी बाइनोमियल चल रहा है, और आपने बहुत सारे अगर पैकेट बेच दिए तो उस पर भी बाइनोमियल चल रहा है. सो अप्रिशिएट दिस कि हमने बाइनोमियल जो है वो किस जगह पे इस्तेमाल करना है, कि जब भी आपके पास रिपीटेड ट्रायल्स होंगे और आपके पास उन रिपीटेड ट्रायल्स में से सक्सेस और फेलियर हो सकती है. within a packet the success or failure was कि आपके पास आइटम डिफेक्टिव आ जाए. and at the macro level आपके पास पैकेट वापस आ जाए, that is your success. Packet is returned, that is your success. That is how you define the success. Okay. Now the second example that I'm going to do is related to calculating probabilities and CDF. हम सबको पता है कि CDF क्या होता है, कि CDF होता है probability x is less than equal to some number I is some constant. ठीक है. This is your CDF. This is your general definition of CDF. Binomial के लिए भी obviously यही definition चलेगी. You don't have any different definition. ठीक है. Now I'm going to try to find the CDF
Okay, that means I will need to try to find these probabilities. Probability x less than equal to I, इसका मतलब x is equal to I की मालूम करनी है, x equal to I minus 1 की, I minus 2 की, I minus 3 की, all the way up to 0. ये सारी probabilities मुझे find out करनी है. इतनी probabilities find out करेंगे तो बड़ा time लग जाएगा. ठीक है. So there is a quick way of finding probability by iterative recursion. Finding probability by recursion. इसका क्या मतलब है ये अभी पता चल जाएगा. We know that the probability x is equal to k, कि आपके पास k successes हो, this would be equal to n choose k p power k 1 minus p power n minus k. ठीक है. n trials किए जिसमें से k successes आए, p is the probability of success, 1 minus p is the probability of failure. Okay, so this is your first equation. Probability x is equal to k plus 1. This would be equal to, obviously, n choose k plus 1, p power k plus 1, or 1 minus p, n minus k minus 1 हो जाएगा, क्योंकि k plus 1 लिखेंगे तो वो. ठीक है. अच्छा, now if you know this probability x is equal to k, अगर ये probability पता हो आपको, तो क्लेम ये है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है. इससे आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं. इसी को हम रिकर्शन कहते हैं. कि गिवन दिस probability x is equal to k, you can easily find this probability x is equal to k plus 1. कैसे? 2 को 1 से डिवाइड करते हैं. 2 divided by 1. Okay, so that would be probability x is equal to k plus 1 divided by the probability x is equal to k. This will be equal to देखें बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें से कैंसिल होने वाली हैं. सो आपके पास आएगा n k plus 1 डिवाइडेड बाय n choose k. और ऊपर एक p ज्यादा है और नीचे यहां पर एक 1 minus p ज्यादा है. ऊपर एक p ज्यादा है और नीचे एक 1 minus p ज्यादा है. ठीक है, दोनों का रेशियो लिया है सिर्फ 2 और 1 का. सो दिस विल टर्न आउट टू बी, इफ यू सॉल्व इट अ लिटिल बिट, तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, n minus k over k plus 1 into p over 1 minus p. तो ये देखें थोड़ा आसान हो गया. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जीरो के लिए जो आसानी से पता चल जाती है, जीरो के लिए पता है तो 1 की मालूम कर सकते हैं, 1 के लिए पता है तो 2 की मालूम कर सकते हैं, 2 के लिए पता है तो 3 की मालूम कर सकते हैं. फाइंड ऑल ऑफ दोज एंड देन यू आर डन. सो देयर इज एन एग्जांपल इन ऑर्डर. So x is binomial with parameters 6 and 0.4. क्या मतलब है इसका? 6 ट्रायल्स की हैं, probability of success in each trial is 0.4. Okay. px of 0, which is probability that x takes a value 0, is equal to, इसका मतलब है कोई भी सक्सेस नहीं है, 0 सक्सेसेस हैं, इसका मतलब सब फेलियर्स. 0.6 which is 1 minus 0.4, 1 minus 0.4 power 6 या 0.6 की power 6, which is approximately 0.0467. ठीक है. What is probability of find 1? Of course आप फार्मूला लगा सकते हैं. आप कह सकते हैं कि this would be n choose 1, this would be 6 choose 1, p power 1, 1 minus p power 6 minus 1. कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारा. ये इजी है इस केस में, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो हमने जो ऊपर ये फॉर्मूला डिराइव किया रिकर्शन वाला, रिकर्शन से देखें कैसे निकल आएगा. रिकर्शन से ऐसे निकलेगा, दिस इज n minus k over k minus 1, n minus k over k minus 1, which is n minus k over k plus 1. So यहाँ पे आपके पास k is 0, so this would be 6 minus 0 over 0 plus 1 into 0.4 over 0.6 into
ये x इज इक्वल टू k वाली प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 0.0467, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.1866। px2 ये कैसे निकलेगा, 6 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, ठीक है, और इसी तरह से 0.4 ओवर 0.6 इंटू दिस नंबर will turn out to be 3110 approximately, so on and so forth। ये देखें रिकर्शन से कितनी आसानी से, अगर आपको ये वाली पता है तो ये वाली आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू k प्लस 1 इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी x less than equal to j, which is equal to the all the probabilities summed together. J is equal to 0 to I is equal to 0 to j probability x is equal to I. This is how you can find the CDF. ये CDF निकाल दिया। Okay. So that is all we wanted to talk about the binomial random variable. So I'm going to talk about another very important random variable. इसकी इंपॉर्टेंस अभी इस चैप्टर में तो इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं होगी, बट दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल। दिस इज यूज्ड in the arrivals of customers in a bank, for example, or arrivals of people in the PDC line, or any kind of arrivals, arrivals of data packets in a computer network. Okay, ये इतना important random variable है कि हर जगह पे ये जहां पे रैंडम अराइवल्स होती हैं वहां पे आप मॉडलिंग कर सकते हैं कि ये अराइवल्स जो हैं आपकी आर अकॉर्डिंग टू पोसॉन रैंडम वेरिएबल। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पोसॉन रैंडम वेरिएबल। पोसॉन रैंडम सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 सर ये हमने पीछे वाला सारा रिकर्जन किया है, इसमें के क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। यार ये मैं दोबारा ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड हुई भी है तो आप वो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन आपको क्विकली से बता देता हूं कि के कोई कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। आपको हम ये कह रहे थे कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 ये पता है, अगर ये पता है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 जो है आपको वो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फैक्टोरियल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो के जो है आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लेंगे, के इज अ नंबर। ये करने का मकसद ये था कि आपको हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इफ यू नो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, यू कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि ये रिकर्शन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी सर। क्लास के बाद भी बेशक जो है ना थोड़ी देर के लिए आई कैन स्टे बैक, और क्लास के बाद भी पूछ लेंगे हम इसी पे वापस आके, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मूव टू पोसॉन रैंडम वेरिएबल। सो पोसॉन रैंडम वेरिएबल इट्स रियली एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ, इट्स रियली कोई नया रैंडम वेरिएबल इस तरह का है कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, प्योर न्यू नहीं है, ये उसी की अप्रोक्सीमेशन है। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल व्हेन n is large, n is large and p is small, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रायल्स करें और अगर बहुत थोड़ी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी, एनीवन कोई एग्जांपल देना चाहेगा कि व्हेन n is very large and p is very small, packets failing in a network, अहमद जुबैर, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन एल्स? बहुत सारा डेटा आता आपके पास आता है, उस डेटा में से एक फेल हो जाए, बहुत कम चांस होता है कि वो फेल हो जाए, या ऐसा होता है मीटियोर शावर होता है और एक मीटियोर जो है वो अर्थ को हिट कर जाता है, ठीक है, वेरी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, और बहुत सारे मीटियोर्स हैं आपके पास, सो दैट इज आल्सो ए पोसॉन रैंडम वेरिएबल। ये हमें पता है बाइनोमियल है, द प्रोबेबिलिटी दैट ईच मीटियोर कैन हिट द अर्थ, देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी। सो इतने सारे मीटियोर्स हिट कर रहे हैं, इतने सारे आपने ट्रायल्स किए हैं, उनमें से सक्सेस है हर ट्रायल की कि अर्थ को हिट करना है, और अर्थ को हिट करने वाला जो है ना वो सिर्फ एक आधा ही होगा कोई, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी, या जी
तो वारिस शाह के लिए भी कुछ चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो उन्होंने लिख दी है वहां पे, बाकी लोगों के लिए शायद इतनी मुश्किल ना हो। तो हो सकता है उनके लिए बाइनोमियल ही हो और किसी किसी के लिए ये पोसॉन हो। ऑलराइट, एग्जांपल्स। सो सबसे पहले इसका पीएमएफ हमें पता चलना चाहिए, सबसे पहले इसका पीएमएफ चलना चाहिए। Probability x takes a value I. This is equal to, ये मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं अभी, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, is e to the minus lambda power I over I factorial where I is equal to 0, 1, 2 so on and so forth. So सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि is this a PMF? ये बताने के लिए कि is this a PMF, what is sufficient is that कि all of these values for every value of I, these probabilities should be non-negative, ठीक है, and they should all sum up to 1, ठीक है. So that is how we would define a PMF. Okay, so करके देख लेते हैं. Summation, try करते हैं. I is equal to 0 to infinity e to the power minus lambda. By the way, ये infinity तक क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि number of trials is very large, is infinity, is very very large, is infinity. So e to the lambda power I over I factorial. So e power minus lambda is constant, वो I पे depend नहीं कर रहा, तो इसको मैं बाहर खींच लेता हूँ, and this would be equal to summation I is equal to 0 to infinity lambda power I over I factorial. And what is this guy? टेलर सीरीज है ये किस चीज की टेलर सीरीज है? ये टेलर सीरीज है e to the power lambda की, e to the lambda की टेलर सीरीज है. So this is 1. And since this guy lambda power I, lambda is greater than or equal to 0, I factorial e power minus lambda, ये सारे जो हैं ये positives हैं, सारे positives हैं. So this is a PMF. This is a probability mass function. Okay. Now the question is okay, why Poisson approximates binomial? Why Poisson approximates binomial? So let x is binomial and p. Let x is binomial and p, and also let n times p is equal to lambda. Also let n times p is equal to lambda, or p equal to lambda over n. एक ही बात है, n p को lambda consider करें या p को lambda over n consider करें, ठीक है. Then probability x is equal to I. Binomial के केस में what is the probability? A random variable which is binomial with parameters n and p takes a value I. इसका मतलब है n trials किए, I successes and n minus I failures. Everyone okay with that? सबको इस पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, बड़ी देर से यही कर रहे हैं बाइनोमियल वाला. Okay, so now this would be n factorial over I factorial over n minus I factorial, ठीक है. p की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ lambda over n power I और 1 minus lambda over n power n minus I. Okay, now with a little bit of manipulation here, so ये n का जो फैक्टोरियल है इसको खोलते जाते हैं, ये n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 so on, कहां तक ले जाते हैं इसको? n minus I plus 1 तक ले जाते हैं, और उसके बाद क्या आएगा? n minus I फैक्टोरियल, वो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय I फैक्टोरियल.
डिवाइडेड बाय i फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इसमें से भी हम थोड़ा सा करते हैं कि ये n पावर i जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, n पावर i यहाँ लिख देते हैं, और ये लैम्डा पावर i ओवर i फैक्टोरियल हमने ऐसे लिख दिया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने ये वाली जो टर्म है इसको हमने ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दिया है। ये i फैक्टोरियल जो था वो इधर चला गया है, ये n की पावर i जो था वो इधर आ गया है, और लैम्डा की पावर i जो था वो इधर आ गया। nothing else has been done, nothing else has been done, okay? अच्छा, इसके साथ भी कुछ करते हैं। सो ये 1 माइनस लैम्डा बाय n, 1 माइनस लैम्डा बाय n पावर n माइनस i है, इसके n को यहाँ रखते हैं, और 1 माइनस लैम्डा बाय n पावर i को यहाँ नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इस पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। नाउ लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा ओवर n पावर i, व्हाट इज दिस? आंसर इन द चैट विंडो। ये आसान है, ये बहुत आसान है। n बहुत बड़ा अगर हो जाए और लैम्डा इज मॉडरेट, if n is infinity, n tending to infinity, lambda is moderate, क्योंकि हमने कहा था कि पोसॉन क्या होता है कि when n is large, p is small, n is large, p is small, we also say at the same time कि n times p is moderate, moderate की क्या डेफिनेशन है? 5, 10, 15, 20, 50, 500 भी ठीक है, बस इस there is no hard limit or hard lower limit or hard upper limit, but moderate really means कि it's not 10 to the power 8, it's not 10 to the power minus 8, ठीक है। So n times p is moderate, so ये 1 minus lambda over n, lambda is a moderate number, 2, 4, 6, 8, 10 होगा, ठीक है, और n is very large, so 1 minus something divided by something very large is 1 power I is 1, so this would be 1, this would approach 1, that is the better way of saying it. So ये तो पहली चीज आ गई। दूसरी चीज क्या है कि ये वाली एक्सप्रेशन तो we are done with this, अगर if n is very large तो हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये 1 बन जाएगी। What about limit n going to infinity 1 minus lambda over n power n, ये क्या होगी? anyone? ये कहीं कैलकुलस में या लिमिट्स के थ्योरम्स देखे होंगे, वहां पर कहीं देखा होगा, ये कैलकुलस या लिमिट थ्योरम्स कहीं देखे हो। अगर नहीं भी देखा, somebody, दानियाल मकबूल, almost there, उन्होंने e लिखा है, लेकिन it's not e, it's e power minus lambda, it's e power minus lambda, वो भी कैसे होता है, ये भी आप टेलर सीरीज को यूज करके और एक दो और आइडेंटिटीज यूज करके प्रूव कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दैट, ठीक है, विल जस्ट टेक दिस। सो ये इस पे ट्रस्ट करें, या गो बैक एंड लुक एट सम ऑफ द नोट्स फ्रॉम द लिमिट थ्योरी जो आपने कहीं कैलकुलस 1 या कैलकुलस 2 में की हो। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर is this guy here, ठीक है। If n is very very large, then what is this number? ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया अभी, what is this number? If n is very very large, this would also tend to 1. Why? Because if n is very large, ये देखें यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे आपके पास i टर्म्स हैं, नीचे भी आपके पास n पावर i है, If n is very very large, we are talking about I terms in the numerator or I terms in the denominator, and these terms are very close to each other. Why? Because n is very large. If n is very large, then n minus 1 over n is also 1, n minus 2 over n is also 1, n minus 3 over n is also 1. Okay? So n minus 1 over n, limit
n going to infinity, this will tend to 1. This will tend to 1. यूं देख लें, इसको ऐसे देख लें, 99 over 100 जो है is closer to 1. 999 over 1000 is even closer to 1. 99,999 over 100,000 is even closer to 1. So n जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो n minus 1 over n tends to be closer to 1. So ये आपके पास आ गया. Now if this guy is 1, this guy is tending to 1, this guy is tending to 1 as well, this guy is tending to e to the power minus lambda, then we are done. So what we have is, okay, this probability x is equal to I is equal to, जो ये binomial था, this is turning out to be lambda power I over I factorial into e to the minus lambda. और यही तो पोसॉन की PMF थी जो हमने डिफाइन की थी, पोसॉन PMF. This was Poisson PMF. Yeah. E to the minus lambda, lambda power I over I factorial, and I going from 0, 1, 2 all the way up to infinity. Okay. So this is great. This is great. Okay. So examples के बगैर तो कुछ चल नहीं सकता. ठीक है. So typos on a printed page. ये उर्दू बाजार से प्रिंट करवा लें तो वो फिर पोसॉन नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा एरर्स आ जाती हैं. लेकिन hopefully if it's a good printer then you will get typos which are not too frequent. ठीक है. So it's a Poisson, it's given to you, it's Poisson with lambda is equal to 1 over 2. ठीक है. And 1 over 2 is a moderate, you know. So we are being asked find the probability at least one error on the page, at least one error on the page. तो solution इसका क्या होगा? Solution ये होगा probability x is greater than or equal to 1, where x is Poisson with lambda 1 over 2. Poisson 1 over 2, इसको ऐसे लिखते हैं, x is Poisson 1 over 2. X has a distribution, Poisson random variable distribution with parameter 1 over 2. The parameter lambda, where lambda is 1 over 2. So probability x is greater than or equal to 1 is 1 minus probability x is less than 1, which is just 0. इसके अलावा और कुछ नहीं है. So this would be equal to 1 minus probability x is equal to 0. कैसे मालूम करेंगे? ये आपके पास आएगी. X is equal to 0, I को 0 put कर दें. So this would be lambda power 0. Lambda is 1 over 2 power 0 e to the minus 1 over 2 divided by 0 factorial. What is 0 factorial? 0 factorial is 1. 0 factorial is 1. So this is really 1 minus e to the minus 1 over 2, which is approximately 0.393. Yeah. Now, here is my question. What if x is Poisson 1 over 20? Will this probability be larger or smaller? Will this probability be larger or smaller? Answers in the chat window. Larger or smaller? Just think about it. ये सोचिएगा इसके बारे में. देखें, हमने कहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 over 2. हमने कहा इसको बाइनोमियल से रिलेट करें तो हमने लैम्डा को एनपी भी लिया था. ठीक है. अगर बाइनोमियल है जिसकी अप्रोक्सीमेशन हमने पोसॉन ली है, उसका लैम्डा जो है वो एनपी के बराबर है. सो दैट मींस इट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विंस. It's the expected number of wins. So you are getting a typo here. So now if I am saying कि अगर आपकी expected value मैंने 1 over 2 से 1 over 20 कर दिया, इसका मतलब है expected number of typos has been reduced by a factor of 20. So the probability that you will get more than one typos, more than or equal to 1 typos, that probability is going to be smaller. Is going to be smaller. मालूम करके देख सकते हैं. Yeah. Okay. Now I'm going to have another example where I relate binomial with Poisson.
Okay, example which relates binomial with Poisson. हमने कहा है कि बाइनोमियल की अप्रोक्सीमेशन जो है वो पोसॉन है. Poisson is an approximation of binomial with large n and small p. With large n and small p. Poisson is approximation of binomial with large n and small p. Okay, and lambda, which is equal to n times p, is moderate. ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है मॉडरेट की. मॉडरेट जस्ट मींस कि जो आपको रीजनेबली मॉडरेट लगे. सो दिस एग्जांपल इज अगेन दैट डिफेक्टिव आइटम्स उसको दोबारा रिविजिट करते हैं. डिफेक्टिव आइटम्स उसी एग्जांपल को रिविजिट करते हैं. सो वंस अगेन 10 items in a box, probability each being defective is 0.01. Now we know that p is very small and is not very large. 10 की जगह अगर ये 100 होता तो I would have been more comfortable. But just for the heck of it, let's assume that 10 is large. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन इतनी अच्छी नहीं है तो क्या थोड़ा सा आंसर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी. अगर तो ये बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन होती, ये 10 की जगह पे 10,000 होता और ये 0.01 की जगह 0.00001 होता, तो देन बाइनोमियल एंड पोसॉन उनकी प्रोबेबिलिटीज के जो आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं या बहुत ही क्लोज आते हैं. ठीक है, अभी इतने क्लोज नहीं आएंगे, बट लेट्स ओके. लेट्स सी कि क्या आंसर्स आते हैं. ठीक है, सो आई एम आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी okay, that you have at most one defective item. ये हमने पहले किया, सॉल्व किया. What is the probability you have at most one defective item? इसका मतलब है we are okay with 0 defective items obviously, and we are also okay with 1 defective item. So सबसे पहले इसको जो है ना ऐसा करते हैं, बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं. और ये हमने किया था, बाइनोमियल से सॉल्व किया था. क्या था कि 0 डिफेक्टिव आइटम आए, 10 choose 0, 0.01 power 0, 0.99 power 1. This is 0 defective items plus 10 choose 1, 0.01 power 1, 0.99 power 10 minus 1, which is 9. This is 0 defective items, and this is the probability of exactly ये 1. 0.99 की पावर 10 नहीं होगी सर 0 डिफेक्टिव आइटम्स में? जी, thank you very much. So this is the probability that you have at most one defective item. So this would be equal to this turnout. अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 0.9957. इसी को हम पोसॉन से सॉल्व करते हैं. और कब लगाते हैं हम पोसॉन? जब ये फैक्टोरियल्स हमारे पास निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं. सो थिंक अबाउट इट कि अगर ये 10 की जगह मेरे पास 1000 होता और मैं आपसे कहता कि 1000 है, मुझे बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 74 डिफेक्टिव आइटम्स, तो वो 1000 और 74 फैक्टोरियल्स कौन निकालता? कोई भी नहीं निकाल सकता था, राइट? सो हो सकता है फाइनल आंसर आपके पास जो है वो ठीक ही आ जाता, लेकिन ये आंसर्स निकालने के लिए फैक्टोरियल्स कौन कैलकुलेट करता? सो पोसॉन लेके चलते हैं. n times p is lambda, so lambda would be equal to 10 times 0.01, which is equal to 0.1, which is moderate. ठीक है, so पोसॉन को यूज करें, so the same probability that 0 or 1 defective items would be equal to e to the minus lambda power 0 over 0 factorial plus e to the minus lambda power 1 over 1 factorial
इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 0.9953. Pretty close, pretty close, pretty close. Even with n not exorbitantly large, it is still very close. Poisson approximation will come even closer to binomial, when n is large and p is small. n को अगर इंक्रीज करते जाएं, p को डिक्रीज करते जाएं, अप्रोक्सीमेशन अच्छी से अच्छी होती चली जाती है. ठीक है. Now, what is the expected value and variance of Poisson? Expected value of and variance of Poisson. So Poisson is an approximation to binomial. So lambda is equal to np. So it is natural. It is natural to think, and this can be proved as well. That expected value of x, where x is Poisson lambda, is equal to n times p. But लेकिन यहाँ पे हमारे पास np नहीं है. Poisson में तो हमारे पास np नहीं है. Poisson में तो हमारे पास lambda है. So this would be equal to lambda. And variance of x, remember variance of x थी हमारे पास np1 minus p. ठीक है. So ये variance of x, again Poisson में हमारे पास np नहीं है. So np की जगह पे तो lambda आ गया. ठीक है. और 1 minus p की जगह पे क्या आएगा? 1 minus p की जगह पे, p is very small, तो 1 minus p की जगह पे 1 आएगा. तो वेरिएंस भी लैम्डा. इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लैम्डा के बराबर है, इसकी वेरिएंस भी लैम्डा के बराबर है, which is nice. और इसको जो है ना प्रूव भी कर सकते हैं. Can also be proved using PMF को यूज करें और expected value of x square do at home. ये घर पे करेंगे. So I'm going to talk about another random variable that we have seen before. ये हमने पहले देख लिया. और ये क्या random variable है? It is called geometric random variable. Again, independent trials. दोबारा से आपने independent trials करनी है. ठीक है. Each with probability p of success. हर जगह पे आपके पास probability p है success की. ठीक है. So x is the number of trials until we see first success. Very different from binomial, but very similar to binomial in some sense. Binomial के बीच में आपने number of trials fix किए. Probability in each trial of success is p. The number of successes is binomial. यहाँ पे number of trials that you need to perform to see the first success, that is geometric random variable. ठीक है. What values x can take? मुझे उसका PMF मालूम करना है. What values x can take? X can take which values? 0 ले सकता है? 0 वैल्यू नहीं ले सकता. बगैर ट्रायल की ये सक्सेस नहीं आ सकती. So x will take value 1. X will take value 2. हो सकता है पहली 2 दफा सक्सेस ना आए, तीसरी दफा सक्सेस आ जाए. हो सकता है पहली 3 दफा ना आए, चौथी दफा आ जाए. और कहां तक जा सकता है ये? Where can it go to? N minus 1. There is no n here. You don't have fixed trials. There is no n here. हमने तो आपको ये कहा ही नहीं है कि n ट्रायल्स करने हैं. There is no n here. मैंने तो ये सिर्फ कहा कि ट्रायल करते जाए. एक लूडो का दाना है, उस पे 6 आना है. कितनी दफा टॉस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा. Guaranteed. Can you bet your life on it? Well, I will not want to bet my life on it unless that number is infinity. ठीक है. तो कितनी दफा मुझे ट्रायल करने पड़ेंगे? वही इनफाइनाइट करने पड़ेंगे. हो सकता है 100 दफा भी मैं डाइस को रोल करूं और 6 ना आए. हो सकता है 500 दफा भी करूं तो ना आए. So this would be infinity. So what is the probability that x takes a value 1?
पहली दफा ही सक्सेस आ जाए, P, probability कि पहली दफा सक्सेस ना आए, दूसरी दफा सक्सेस आए, which means 1 minus P times P. Probability x is equal to 3 is पहली दो दफा सक्सेस ना आए, उसके बाद सक्सेस आ जाए, ठीक है. So probability x takes a value n would be equal to 1 minus P power n minus 1 times P. Okay. Now, yeah, is this a PMF? Is this a PMF? कैसे प्रूव कर सकते हैं? Summation I is equal to 0 से नहीं जा सकते, 1 से लेके इंफिनिटी 1 minus P power I minus 1 P. इसको समेशन करें, you will see कि this will turn out to be equal to 1. This will turn out to be equal to 1. All of these guys will be positive. So this is a PMF. ये शो करें घर पे. Easy to show, very easy to show. Geometric series है, infinite geometric series, उसका आपने sum करना है. Infinite geometric series का sum करना है. So there is an example in the notes. वो जरूर देख लें, example है notes में, उसको जरूर देख लें. So now एक question जो हमसे पूछा जाता है कि a related question related to the geometric random variable, ठीक है. Find the probability that at least k trials are required, k trials are needed until the first success. Okay. इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि डाइस रोल कर रहे हैं और आपके पास 2 डाइस रोल करते हैं इकट्ठे और डबल 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36. ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक मोर देन 97 रोल्स टू सी द डबल 6. ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी. What is the probability that at least k trials are required until you see the first success? इसका मतलब है कि now I am guaranteeing कि पहले k-1 trials जो हैं ये तो failure है. पहले k-1 failure है. It is the same as the probability that at least k trials are required. ठीक है? So this is the same as first k-1 failures, which means that this is 1 minus p power k-1. 1 minus p power k-1. There is an example on that as well. So I'm going to quickly talk about the mean and variance. We'll take just 2 minutes. Mean and variance of geometric. Mean and variance of geometric. So if x is geometric with parameter p, this is how we write it. ठीक है, एक ही पैरामीटर है जो डिफाइन कर देता है पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को. अगर मुझे बस ये p का पता हो तो इसका मतलब है we know the entire PMF, we can answer every question. So expected value of x, you can show that it turns out to be equal to 1/p. ठीक है, इसके आपको मैं इंट्यूटिव एग्जांपल दे देता हूं कि 2 डाइस रोल करें. What is the probability to get a double 6 is 1/36. What is the expected number of trials you will need to get a double 6? That is 1/1/36. तो आपको 36 दफा जो है वो रोल करना पड़ेगा. ठीक है, that is the expected value. Similarly, अगर आप एक coin toss करते हैं, what is the probability you will see the first head? पहली दफा है, हो सकता है आपको पहली 6 दफा tail ही नजर आ जाए. But what is the expected value? कि आपको head नजर आएगा. How many trials on average you will take to see the first head? That would be 1 divided by 1/2, which is 2. So this is how the expected value is interpreted. We have a proof for that. Proof के लिए see notes और book, दोनों में दिया हुआ है, मैंने book से ही दे के लिखा हुआ है notes में. So it's the same thing. Similarly, the variance of x is 1 minus p over p squared. 1 minus p
over p squared. This is the variance of a random variable which is geometric with parameter p. Okay. Quick example. Roll a dice. Roll a dice. Expected number of rolls. ये single dice को roll करना है until you see a 2. Until you see a 2 is 1 over p, which is 1 over 6, which is 6. 6 दफा आपको जो है वो रोल करना पड़ेगा on average. ठीक है. So if I can just spend 1 minute, there is another random variable called, इस पे ज्यादा नहीं है कुछ, negative binomial random variable. It is just an extension. It is just an extension of geometric random variable. Extension का क्या मतलब है? Geometric random variable में हमने कहा कि पहली सक्सेस आने तक कितने ट्रायल्स चाहिए, पहली सक्सेस आने तक कितने ट्रायल्स चाहिए. नेगेटिव बाइनोमियल में आपने इंस्टेड ऑफ फर्स्ट सक्सेस we are interested in rth success. So number of trials until rth success. ठीक है. So ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, probability, your negative binomial random variable takes a value n. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट n-1 ट्रायल्स में have r-1 successes multiplied by the last trial is a success. ठीक है. x is equal to n का मतलब है कि पहले n-1 ट्रायल्स में से r-1 सक्सेसेस आएंगे. पहले n-1 में से r-1 सक्सेसेस आई हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी द लास्ट वन इज अ सक्सेस. ठीक है. सो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे? वो n-1 में से r-1 p पावर r-1 1 माइनस p पावर n-1 माइनस r-1 और फिर ये लास्ट वन इज अ सक्सेस. Yeah. We'll talk more about it. And a few examples जो notes में दी हैं. See notes for a couple of examples. And then we'll continue it from here on Tuesday. कोई सवाल है तो जरूर पूछें. Otherwise I will close the session. कोई ऊपर से पहले किसी का सवाल था? हाँ सर, बस आखिरी क्वेश्चन दिखा दो जो आपने. आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे. सो हम ये कह रहे हैं कि आपको rth सक्सेस चाहिए और हम ये कह रहे हैं rth सक्सेस जो है वो x इज इक्वल टू n पे होती है. ठीक है. इसका मतलब है nth जो है वो मेरे पास वो rth सक्सेस आएगी. nth ट्रायल जो किया वो वहां पे मेरे पास rth सक्सेस आई है. nth ट्रायल पे rth सक्सेस आई है. इसका मतलब है पहले जो n-1 थे उनमें r-1 सक्सेसेस आई थी. कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी कोई पता नहीं. कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई थी कुछ पता नहीं है. तो n-1 में r-1 सक्सेसेस ले आए. ये r-1 सक्सेसेस और n-1 माइनस r-1 ये फेलियर्स और फिर आखिरी वाली जो है वो सक्सेस आ गई. ठीक है. थैंक यू. ग्रेट. एनीवन एल्स? फवाज आपका क्वेश्चन है? जी सर ये ऊपर वाली एग्जांपल वापस से समझा देंगे, नेगेटिव बाइनोमियल के ऊपर वाली. नेगेटिव बाइनोमियल ये डाइस रोल वाली? जी. हाँ देखें, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है. हम ये कह रहे हैं कि हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने उसकी, ये प्रूफ जो है वो बुक में दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है. एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी 1/p आती है. एक डाइस को रोल करें
तो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ 2 कितनी होती है, हमें पता है 1/6 होती है, ठीक है। सो हर ट्रायल में 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हर ट्रायल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए फिर ज्योमेट्रिक नहीं रहेगा, फिर ज्योमेट्रिक नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल हैज टू बी द सेम। बाइनोमियल में भी यही होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज द सेम, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक ये कहता है कि आपको कितने ट्रायल्स चाहिए पहली सक्सेस आने तक। मैं डिफाइन कर रहा हूं कि 2 जो आना है ये सक्सेस है, उसके लिए ऑन एवरेज जितने ट्रायल चाहिए वो हमारे पास 1/p है, where p is the probability of success। और सक्सेस को मैंने डिफाइन किया है कि आपके पास नंबर 2 सामने आ जाए, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/6 ये आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। मेक सेंस? जी सर, ओके थैंक्स। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई और सवाल? सर एक चीज पूछनी थी जी जी। सर, जो पॉइजन वेरिएबल है वो सिर्फ एज अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल यूज होता है, या उसका वो सर उसको वो भी करते फायदा होते क्या हैं, पता नहीं कंटिन्यूस से भी रिलेट करते होते हैं कि अगर कोई किसी फिक्स्ड इंटरवल में कोई चीज हो रही हो इस तरह करके। हाँ, अभी 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 उसको उसको भूल जाएं, अभी भूल जाएं उसको ना। ये इस चैप्टर के अंदर जो है ना, पोसॉन जो है वो बाइनोमियल की अप्रोक्सीमेशन ही है। हर वो सवाल जिसका जवाब आपको बाइनोमियल से मिल जाएगा, पोसॉन भी जो जवाब मिल जाएगा वो बाइनोमियल से भी मिल जाएगा। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपके पास ये पोसॉन रैंडम वेरिएबल जो होता है, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इस कंटिन्यूस के साथ इसका रिलेशनशिप आएगा, लेकिन वो चैप्टर 5 के अंदर हम लेकर आएंगे। चैप्टर 5 के भी शुरू में नहीं लेकर आएंगे, उसके भी कहीं एंड पे जाके आएगा। सो अभी फिलहाल जो है वो, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि पोसॉन जो है वो आपको ये भी बताता है कि नंबर ऑफ पैकेट्स अराइव्ड जो फॉल्टिंग है। एक नेटवर्क है, एक मेरे पास कंप्यूटर में डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, और ये जो पैकेट्स आ रहे हैं आपके पास बेशुमार ही पैकेट्स आ रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। उनमें से कुछ पैकेट खराब हो जाते हैं, सारे नहीं होते, बहुत कम चांस होता है कि पैकेट खराब हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पैकेट बीइंग डिफेक्टिव is very small and the number of packets that I receive is very large। यहाँ पे ये आपके पास पोसॉन ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आप बात कर रहे थे, द टाइम डिस्टेंस बिटवीन द अराइवल ऑफ 2 पैकेट्स, वो एक कंटिन्यूअस टाइम होगा, वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। वो एक रैंडम वेरिएबल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, वो इस पोसॉन के साथ रिलेटेड होता है, लेकिन वी विल नीड टू वेट फॉर दैट। ठीक है सर, ठीक है। सही है, वो लेकिन आप एंड पे सारा लाइक टाई अप हो जाता है ना, वो ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन भी ऐसे नहीं ठीक है, छोड़ेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड नहीं छोड़ेंगे, टाइप करके छोड़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? Sir, which topics will be there in the quiz that's on Monday? व्हिच क्विज? जो Monday को व्हिच टॉपिक्स? जो हमने पढ़ लिया वही टॉपिक्स। so geometric random variables are included. और वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े? सर हमने कहा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन ये जो इतने नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं ना, वो सारे जी। देख लें, ठीक है। Okay. इट्स ओनली अ फ्यू पेजेस, 7-8 पेजेस हैं। आज हम काफी स्लो गए हैं, हमने शुरू की चीजें थोड़ी सी रिवाइज की हैं, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर के यू नो सारे लोग ही साथ साथ चल रहे हों, कोई पीछे ना रह जाए। तो काफी सारा टाइम हमारा उसमें भी लग गया। हमने नई चीज तो आज कोई बहुत ही कम ही कवर की है, बहुत ज्यादा नहीं काम किया, ठीक है। तो ये नोट्स जो अगर आप देखेंगे ना, ये लेस देन 10 पेजेस हैं, लेस देन 10 पेजेस जो आज हमने कवर किए हैं, शायद 6 पेजेस होंगे। तो वो तो आप बड़ी क्विकली से कर लेंगे, माशाल्लाह जल्दी करते हैं आप। Okay. And sir, usually सवाल में दिया होता है what type of approximation we have to use, या do we have to assume खुद के we have to convert from binomial to या तो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ओहो ये प्रोबेबिलिटी जो है बहुत थोड़ी है, नंबर बहुत ज्यादा है, तो पोसॉन लग जाएगी, चलें पोसॉन लगा देते हैं। आंसर आपका गलत नहीं आएगा, आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली ठीक ही आएगा, Okay. ठीक है। ये फिर प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कुछ अरसे के बाद कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने पोसॉन यूज करना है। आगे और मजीद चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे
कि एक और, जिस तरह आपका बेल कर्व आपने हमने नाम सुना हुआ है, हमें पता नहीं है अभी क्या होता है, वेल शेप में भी शायद क्लास में लोगों को पता हो, लेकिन बेल कर्व जो है वो बड़ा यूज करते हैं जिसपे ग्रेडिंग होती है। सो वो भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट भी करती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी अप्रोक्सीमेशन हम देखेंगे, बट अगेन वी हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, Yes, एनी thank you. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का क्वेश्चन हो जरूर पूछ लें। नहीं, great. Okay, so I'm going to stop the share and close the session. Thank you very much. Khuda Hafiz.